A very good morning to all of you. I, Garima Jain, Assistant Professor at Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the orientation series organized by DME Media School. Delhi Metropolitan Education is a premier education institution affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University and approved by the Bar Council of India. Sessions like these with industry experts are important as they give you a glimpse of how things actually work beyond textbooks, help you understand the latest trends in the media world, and most importantly, inspire you to dream bigger and shape your own journey. With this, I warmly welcome the new batch of 2025 to the DME Media School family and the guests and dignitaries present here. Light signifies knowledge, wisdom, and positivity. To mark the auspicious beginning of today's orientation, I humbly invite our guest of honor and the dignitaries to kindly come forward for the ceremonial lamp of lighting. We are honored to have with us Ms. Meenakshi Joshi, senior anchor at India TV, whose remarkable work in television journalism has inspired many aspiring media professionals. I would request Honorable Justice Mr. Bhavar Singh Ji, Director General DME, Professor Dr. Komal Vig, Additional Director DME, and Dr. Parul Mehra, Head Media School, to kindly felicitate our guest of honor today. To set the tone for today's session, I now invite Dr. Parul Mehra, Head of DME Media School, to deliver the opening address. So, we begin our orientation session series today with one of the most prominent anchors of Indian media industry, Ms. Meenakshi Joshi. Give a huge round of applause, please. She is a prime-time anchor at India TV and a guest of honor for today's morning. I would like to thank her for accepting our invitation and sparing her time and being with us today for this very important event of ours. Our DG Saab is also present here, Honorable Mr. Justice Bhavar Singh Sir, a new member to the DME family, Additional Director, Professor Dr. Komal Vig ma'am, my dear colleagues and my dearest students, very good morning to all of you. A new dawn and a new day, a fresh bunch of roses at its bay. Let's kickstart this new ride. I welcome you all to this new ride. I would like to officially welcome all my students of batch 2025 and 29, as it marks a new chapter, a new beginning for all of you in your professional as well as the academic career now. And I'm truly delighted to have each one of you as a part of this vibrant community of DME Media School. I would like to take a pride in sharing that DME Media School is a hub of creativity, critical thinking, innovations. And here we offer a blend of theoretical knowledge with hands-on training experience with the state-of-art facility in a form of Studio 62 and a year-round production of, photography, teaching different genres to the students, filmmaking, documentary making, and much more, so that our students can be trained as per the industry standards of media. We have expert faculty members who are coming from the different areas of media. Nobody is overlapping to each other for a reason, so that no part, no avenue, no stream should remain untouched. So we have tried to inculcate teachers from different areas and domains of the media. Of course, the enriching co-curricular and the curriculum of GGS IP University, which is a blend of theory as well as the practical knowledge, absolutely redefines the media education with no limits for the learner's horizon. I know Ms. Meenakshi would agree to me that media and mass communication industry has evolved rapidly, especially after the, coming of artificial intelligence in the newsroom. This field demands much more than what you are actually imagining. Now the way stories are told, how people perceive on different news items, how actually the stories are disseminated to the public has been completely revolutionized.
So all of you are going to be a future journalist. You are going to be a future filmmakers. You are going to be a future PR professionals. Basically now your work is going to be to influence public, because very soon you're going to get a power to influence the people around the globe. But I just wanted to say that always remember one mantra of success, especially for the mass communication students, that whatever you are learning in the premises of four walls of classroom will not work for you. So step out from the classroom, move out, pick up the opportunities that we are going to offer you in a form of internships, projects, workshops, such important lectures which we are doing an interaction for all of you with the industry experts. So try to take best from this opportunity and do lots and lots of interaction with the media people. I would also like to take a moment to tell you about very important flagship events of DME Media School, which is ICANN. ICANN is an international conference which we are consecutively, doing it from last 7 years. Now we are going to enter into its 8th edition, which we are doing in collaboration with some very prominent, countries, and we are inviting, people from different parts of the world. We also have SIFI, which is an international film festival, again where we are in collaboration with lots of foreign university and foreign filmmakers who are coming down to the campus and teaching the art of filmmaking in a form of master classes and workshops to the students. So it's very important to be a part of these, very, very important programs, the flagship events of the department. We also have Ritika, which is a media convention and the media festival, which is done, the major objective of this event is to make our student learn the art of event management. So that again is going to be one of the important event which you must participate. Last but not the least is the BG Varghese lecture series, which is actually incepted with the vision so that many of the top-notch the media professionals should come in and discuss about their expertise with the students so that they can understand the importance of a pertinent issue of that time. So in all, I just wanted to say I want to assure you, in fact, the journey here is going to be full of exploration and discoveries for all of you. So we generally, at DME Media School, students enter as a learner and they go out as a professionals. So try to be very focused with what we are offering you and take best of it. Thank you, all of you. Have a nice day. God bless you all. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite our respected Director General, sir, to kindly address the gathering and share his words of wisdom with us. Give a huge round of applause for Director DG, sir. Madam Meenakshi Joshi, the chief guest of the event. Madam Komal Vij, the additional director of DME. Madam Parul, faculty members, and dear students. I welcome you all on my own behalf and on behalf of the society which has been running this college, besides few others. I hope you are doing well and ready to embark on a new academic journey. As we start this session of journalism course, I want to remind you that education is not only about acquiring knowledge and skills, but also prepare us for life. The lessons you will learn during your classroom will serve you well in the future, whether you go for higher education or enter the workforce. Friends, as you begin this new academic journey, I encourage you to approach your studies with a growth mindset.
This means that your abilities can be developed with hard work and perseverance. To support your academic success, we have an outstanding faculty and staff who are dedicated to providing you with best education possible. They will work with you to help you reach your full potential and achieve your goals. I also encourage you to take advantage of our resources such as our rich library, technology center, and after-school programs. One of my top priorities is to ensure that our students receive a higher quality education. This means providing them with engaging and challenging expressions and experiences, as well as support they need to succeed. To achieve this, we will be working closely with our faculty and staff to implement effective teaching strategies and programs. In addition to academic success, we also place a strong emphasis on building character. Our school values of respect, responsibility, and excellence serve as a guide for how we interact with others and approach our work. One of the highlights of our school is vibrant and school community. I encourage you to get involved in our school clubs, fly committees, organizations, and sport teams. Participating in extracurricular activities is a great way to meet new friends, develop new skills, and have fun. Finally, I wish to stress upon the importance of communication and collaboration, whether you are working with classmates on a group project or talking with your teachers. Friends, remember, education is a journey, not a destination. And that with hard work, perseverance, and a growth mindset, you can achieve anything you set your mind to. Friends, very soon you are joining at a time when Teachers' Day will be celebrated across the country to remember and commemorate our great soul who was our second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Friends, today is the day for you to bear in mind throughout your career a few principles I always emphasize upon. You must be respectful to your teachers as they are like a candle. In your career as a student, a teacher is much more important than what he teaches. They are most responsible and important members of our society. There is a Japanese verb that it is better than 1,000 days of diligent study to spend one day with a teacher. Friends, I wish that you must strictly observe the principles of punctuality and also that of confidence. Friends, the world is the history of a few successful persons. Vasco da Gama, Maharana Pratap, and Mahatma Gandhi.
hundreds of kings and emperors came in Rajasthan, but none alike Maharana Pratap. Today, if you happen to go to Rajasthan, you will always and everywhere find the statues of Maharana Pratap, because he had created a history of confidence. Friends, a hunterman in a circus doesn't terrorize the lion by his hunter, but by the confidence in his eyes when he looks and peeps into the eyes of the lion. Never feel subdued of anything which happens adversely in your life. Ups and downs come evenly to all. Friends, the last but not least is the rule of divinity, which always I foster upon. Be just, fair, and reasonable always in your dealings, and particularly in your career as a journalist. Believe in good moral behavior and have faith in divine things. Nature is the greatest healing power. Never link things on luck or chance. Always be energetic and of positive approach. The whole life is a journey of learning, as said by Henry Kissinger, the Secretary for State in the Nixon's regime in America. Have company of good fellows. As it is usually said, that a man is known by his company. Believe in your self-encouragement and be of functional utility. Ladies and gentlemen, once again, I welcome Meenakshi ma'am to this college and to all of you. Thank you so much, sir. Now I take the privilege of inviting the newest member of our DME family, Professor Dr. Komal Vig, Additional Director, DME, to kindly share her thoughts with all of us. Esteemed guest of honor, Ms. Meenakshi Joshi ji, Honorable Mr. Justice Bhavar Singh ji, respected colleagues and dear students, a very good afternoon to all of you. I know you are sitting here since morning waiting for us, waiting for our esteemed guest to deliver her session and to know the industry experience from her. I will not take much of your time, but yes, I would like to use this platform for a common dialogue between us. I may not be getting this time again that I will be addressing to all the newcomers. So I would first of all welcome you at DME when you embark upon a new journey with lots of hopes and aspirations. And all I can assure you from the management is we will guarantee you with the quality education and the best experiential learning during your college days. We assure you with the same. Our teachers are qualified, we have the best infrastructure, and how you have to make the best use of it, that will be guided to you by your teachers. Here I would like to just give four pieces of advice with you all. And first one is, yes, at the last also, I wish everyone should listen to this. And if you can, please practice this in your life. This will definitely going to make you a real intellect as well as a qualified person. First one, live up to the expectation of your parents. Every parent knows the potential of their child. So be thankful to your parents. They are paying their hard-earned money to get you qualified, to make you qualified to be successful in your life. So live up to the expectation of your parents. Second important thing, respect your teachers. Believe me, students, beside your parents,
Only your teachers want to see you more successful than we are. So always respect your teachers. Number 3, equally important, yes, this is the time that you have to make memories, that you have to live the moments and make the memories for life. You are just out of the school and you have a fascinating image about the college days. Yes, the college is here. So you have to make the best of this time, but try to learn that how to create balance between the fun moments as well as the learning. So this is the time when you have to make your career. My simple piece of suggestion is, you will appear for your interviews for placement after the completion of your course. What should your CV look like? You are not supposed to design it at the end of the course. Design it today. Our experts are here. She will guide you better that what industry is looking for the people. Because 4 years, 3 years after, when you will be out in the industry, what kind of industry requirement is there? These people, the experts from the industry will tell you. And you have to build your CV accordingly. You have to design it today, plan it today so that you can achieve it. And at the end, you are, of course, you will be having beautiful memories with your friends as well as a wonderful enriched CV for your placements. And last thing which I would like to say, you are fortunate, so be thankful, be grateful to the Almighty that you are sitting here, you are getting the quality education. Everyone is not so fortunate. So try to give back to the society whatever is in your capacity. Either to, we have to give something back to the society in the form of charity, in the form of free work for whosoever we can give to. So always give back to the society. With all these 4 advices, I like to welcome you again. Most welcome and have a fruitful journey here. Thank you. Thank you so much, ma'am. And now, boys and girls, let's shift gears to the newsroom. Stepping into our spotlight is a celebrated face of Indian journalism, senior anchor with India TV, Miss Meenakshi Joshi. Give a huge round of applause. Just as she engages millions of viewers with clarity and confidence, we are honored to welcome her on stage to engage with all of us today. आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ मंच पर मुझे बुलाने के लिए डीएमई फ्रेटर्निटी का प्रोफेसर आपका, पारुल जी आपका एंड जस्टिस भंवर जी, आप हमारे साथ हैं और आपसे जो इनसाइट हमें मिलते हैं, जीवन के अनुभव मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले हम बहुत लंबी चर्चा अंदर बैठकर करके आए हैं। हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब भी अपनी बात मंच पर रखूं तो एक प्रार्थना के साथ रखूं, और ये प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये प्रार्थना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है। सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवा वहे तेजस्वी ना विधि तमस्तु मां विद्विषा वहे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस प्रार्थना के बारे में पता है, मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग इस प्रार्थना के बारे में समझना चाहते भी हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगी आपकी जैसी यंग जनरेशन को इस प्रार्थना का मतलब मैं समझा सकूं और उसके पीछे का गूढ़ अर्थ मैं समझा सकूं। सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवा वहे तेजस्वी ना विधि तमस्तु मां विद्विषा वहे। ये प्रार्थना छात्रों के लिए है, ये प्रार्थना उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी है, ये प्रार्थना मेरे लिए भी है, ये प्रार्थना आप सब वहाँ जो बैठे हैं, जो शायद कल भविष्य में यहाँ मेरी तरह मंच पर खड़े होकर आने वाली जनरेशन को जब लेक्चर दे रहे होंगे, एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे होंगे, अपने संस्मरण बता रहे होंगे, तो ये आप लोगों के लिए भी है कि आपका शिष्य और आपके छात्र दोनों एक साथ पढ़ें, एक साथ ज्ञान अर्जित करें,
एक साथ आगे बढ़े, तेजस्वी बने, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। जब हम एक साथ की बात करते हैं तो किसी भी एजुकेशन में, किसी भी जीवन के पड़ाव में आप जहां कहीं भी खड़े हुए हो, आज चाहे स्टूडेंट हो या फिर आने वाले कल को जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो पहली शर्त और आखिरी शर्त ही ये है कि आपको हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना है। You have to be a student always. Even if you are at the top of your career, you have to behave like a student. Sir, if I am not wrong. क्योंकि जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि हमने सब सीख लिया, तो जीवन हमें पटकती है बहुत जोर से, बहुत जोर से आपको अर्श से फर्श पर लाकर पटकती है। जिस दिन हमने ये सोच लिया, अपने दिमाग में ये अहंकार भर लिया कि हमें तो सब आ गया, अक्सर द जेन ज़ी जनरेशन हैज़ दिस प्रॉब्लम सर। आज के यूथ में ये थोड़ा सा अहंकार, ये थोड़ा सा घमंड, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन में अपने आप को द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ समझने की भूल करना, ये आपको किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करने देगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा हमेशा के लिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक एक छात्र बने रहना है, एजुकेशन और नॉलेज एक्वायर करते रहना है। एजुकेशन इज व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, व्हाट योर टीचर्स आर टेलिंग यू, हाउ टू लर्न, हाउ टू परफॉर्म, what are the skills, how you can polish your skills. तो ये है एजुकेशन। बट एजुकेशन से और एक चरण ऊपर आती है नॉलेज, ज्ञान। और जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी किताबों से अर्जित किया गया ज्ञान, वो नॉलेज या वो एजुकेशन नहीं होती है, वो नॉलेज आप अपने अनुभव से एक्वायर करते हैं। यू एक्वायर नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस। तो आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो है भारत ने महाकुंभ देखा, एक अद्भुत समागम देखा, और हमने देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को भारत की संस्कृति से परिचय करते हुए देखा। ऐसा महाकुंभ का अवसर सदियों में एक बार आता है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ सर, दैट आई कुड लिव दैट मोमेंट। मेरा प्रोफेशन, मेरा काम मुझे ये अवसर देता है कि मैं ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों को अपनी डायरी में नोट कर सकूं कि हाँ, ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखा। एक बड़ा ऐतिहासिक अनुभव, मुझे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने का मौका मुझे मिला। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे मैंने जिया है अपनी एंकरिंग के थ्रू, वहाँ पर मौजूद रहकर। तो ऐसे जब मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं तब आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपकी एजुकेशन और आपकी नॉलेज, जो आपके अनुभव हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्यों आपको जीवन भर छात्र बने रहना चाहिए। एक एंकर को, क्योंकि हम न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है, सो वी लर्न अबाउट वट एवर इज गोइंग राइट अराउंड अस, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट एंटरटेनमेंट। आप इन सब के बारे में रोज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के लिए आपको बोला जाता है ना। देखिए, सबसे पहली शर्त तो मैंने बताया, जीवन भर स्टूडेंट बने रहना है, लेकिन जर्नलिस्ट बनने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। से येस और नो, डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? इतने ठंडे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? थैंक यू, थैंक यू। बी अलाइव, जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम जो अपने अखबारों में पढ़ते हैं, हर दिन नॉलेज एक्वायर करते हैं कि हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर होंगे, मोहन भागवत वहाँ पर होंगे, देश की जितनी गणमान्य हस्तियाँ हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हो, स्पोर्ट इंडस्ट्री की हो, वो बिजनेस फ्रेटर्निटी की हो, वो सब वहाँ पर होंगी। आप उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आपको परफॉर्म करना होता है तब आपके ध्येय में क्या होता है? क्या अखबार में पढ़ा हुआ वो सब आपके काम आएगा? हाँ,
लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टैंड आउट कौन करेगा? आपकी एडिशनल इनपुट। वो एडिशनल इनपुट कहाँ से आ सकता है? सर, मैंने उसकी तैयारी की, मैंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ी, मैंने गोस्वामी जी के रामचरितमानस पढ़ी. Every anchor was doing anchoring over there and they were just giving the information. But I was giving information with addition of knowledge which I acquired through रामचरितमानस. अगर आप राम के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको राम के व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता जो उन छंदों में, उन चौपाइयों में लिखा हुआ है, then what additional you are doing? You are just another anchor, you are just another reporter. आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग दिखने के लिए अलग करना पड़ेगा. अगर सब एक ढर्रे में एंकरिंग करते रहेंगे, एक ढर्रे में रिपोर्टिंग करते रहेंगे, तो आप भी बस ABCDEFGH करके एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका भी एक नाम होगा. लेकिन अगर आपको अपना अलग नाम बनाना है तो आपको अलग सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक डिफरेंट, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. और फिर ऊपर वाला आपकी कैसे मदद करता है, इसका एक छोटा सा किस्सा मैं वहीं का बताती हूँ. राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर के अब बस पट खुलने ही वाले थे. आंखों को अगर आपको पता है कि किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या आप अपने भी घर पे कभी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो आंखें कवर करके रखते हैं मूर्ति की, क्योंकि तब तक प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं होती है. लेकिन जब आप सारे रिचुअल्स कर लेते हैं, उसके बाद उनकी आंखों के पट खोलते हैं, तब वो कहते हैं कि एक्चुअल प्राण प्रतिष्ठा हैज हैपेंड. अब आपकी तैयारी आपको कैसे मदद करती है? We do have, यहाँ पे पुराने छात्र कितने हैं? How many are the old students over there? Yeah. So you all know about the production control room, PCR. PCR के बारे में आपको पता है. So the anchors get a earphone. हमारे पास एक earpiece होता है, हमारे कॉलर माइक लगा हुआ होता है, and we get few instructions from the production control room. So I got an input from the production control room. It was not an input, it was a command that Meenakshi, that the put is going to be open. So now be ready to recite all those chand and chaupais and dohas which tells about the beauty of Ram Lala. क्योंकि मैंने out of the box सोचा था, sir, so it was the कृपा है भगवान की, उनकी कृपा रही. इतनी मोटी किताब में वो पन्ना मेरे सामने खुद खुला है. मैंने पन्ना ऐसे पलटा है, कहीं से भी मैंने पन्ना यूं पलटा है, मेरे सामने वो पन्ना खुला है जहां पर वो दोहे लिखे हुए थे जिसमें राम लला के व्यक्तित्व के बारे में था, उनकी छवि के बारे में था. That was a pure magical moment for me. That was a pure magical moment for me. And no anchor in no other channel, no other reporter was reciting the Doha other than India TV and me. I was doing it because I thought out of the box and God helped me. And God helped me. जो बात अभी थोड़ी देर पहले विज मैम कह रही थी कि you have to be thankful to the Almighty God because everybody is struggling. Everybody is trying to achieve a goal. Everybody is struggling, ma'am. ये दुनिया बहुत अच्छी है जब तक आप वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब आप बाहर की दौड़ में फंसेंगे, आप हर दिन की दौड़ में फंसेंगे, जब आपके एडिटर आपको डांट लगाएंगे केबिन में बुला के कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, या जब आप समय देख रहे होंगे और ये सोचेंगे कि ये तो मेरे घर जाने का समय हो गया, एंड देन एट द सेम मोमेंट यू विल गेट अ कॉल दैट गो टू द स्टूडियो, वो न्यूज़ ब्रेक हो गई है, फील्ड पे चले जाओ. आपको झुंझलाहट होगी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको ये लगेगा कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ये होता है सर, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ. जिस वक्त आप ये सोचेंगे कि आपका काम खत्म हो गया, आज आपका दिन खत्म हो गया, और तब आपको ये पता चलेगा कि अरे दिन तो अभी शुरू हुआ है, इतनी देर से जो आप कर रहे थे वो तो कर लिया. क्योंकि जर्नलिस्ट की लाइफ ऐसी ही होती है. द मोमेंट यू विल थिंक दैट योर जॉब इज ओवर, समथिंग बिग इज वेटिंग फॉर यू.
and if you are well prepared for that big, you will be big. अगर आपने ये तय कर लिया, उसी एक मोमेंट में अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि my job is done, my time is done, I have to go home, my shift is over, now I am going, और उस वक्त आपने उस बिग अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया which can actually make you big, तो फिर आपकी जिंदगी, आप ये समझ लीजिए, वहीं पर एक फुल स्टॉप लग गया। बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने करियर की शुरुआत में 16 घंटे काम किया है। मैंने नाइट शिफ्ट्स की हैं, मैंने थानों के चक्कर भी लगाए हैं खबरों के लिए। विशाल भाई जानते हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द इंडस्ट्री फ्रॉम कोर। मैंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर 15 दिन के ट्रिप किए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लोग वहाँ से भाग रहे थे, पत्रकार वहाँ दौड़ रहे थे, वहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि हमारे लिए न्यूज़ फर्स्ट, देन एनीथिंग एल्स कम्स। फैमिली भी उसके बाद हो जाती है, फिर हर चीज़ उसके बाद होती है। पहला काम ही खबर है, झुंझलाना नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत थक गए हैं, 1 गिलास पानी पीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे? क्या आपने ये फील्ड चूज़ की थी? हाँ, अगर जवाब हाँ में आए कि हाँ मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था, मैं एंकर बनना चाहती थी, मैं रिपोर्टर बनना चाहती थी, मैं अच्छा कुछ लिखना चाहती थी, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, तो उसी वक्त फिर उठिए और फिर काम पे लग जाइए। क्योंकि कई बार होगा, ये बहुत सुनहरी सी दुनिया लगती है टीवी पर और ऐसा लगता है कि सब कुछ चमचमाता हुआ है, लेकिन सब कुछ चमचमाता हुआ नहीं है। सालों की मेहनत होती है, फिर कोई एक दिन आपका अपना बनता है। जैसे शाहीन बाग में मेरे साथ हुआ, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता देती हूँ। वीक ऑफ नहीं मिले थे पिछले कुछ दिनों से, आई वॉज वेरी टायर्ड और आई वॉज, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट लाई, मैं स्टेज पर खड़ी हुई मंच पर हूँ और मंच और माइक जो है हमारे लिए जैसे मंदिर की पूजा की थाली और अगरबत्ती होता है, वैसे एक एंकर के लिए मंच और उसका माइक होता है। मैं एग्जॉस्टेड थी, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि क्यों मैंने कौन सी घड़ी में ये सोचा कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। सुबह के 7 बजे का बुलेटिन था, बीच में से मुझे उठाया गया, कहा कि शाहीन बाग चली जाओ। और मुझे लगा कि ना मेरी नींद पूरी हुई है, ना अभी मैंने सुबह का एक निवाला भी खाया है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, एंड आई एम गेटिंग अ कॉल टू गो टू शाहीन बाग। आई वॉजंट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। पर काम है, अगर आप काम को काम की तरह से मानते हैं, उसे पूजा मानते हैं, तो आप करेंगे। मैं गई, छोटा सा ब्रीफ मिला, शाहीन बाग जाओ, वहाँ पे एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। सो इट वॉज अ बिग टॉक ऑफ टाउन, एनआरसी, लोगों की नागरिकता रद्द हो जाएगी और क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारी बातें कही गई। और एक बार आप ब्रीफ पूरा पढ़ते हो, थोड़ा सा बैकड्रॉप पढ़ते हो, आने वाली क्या घटना है वो पढ़ते हो, एंड देन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो बात मैंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान के लिए कही, अब इसमें कैसे इम्प्लाई होती है, ये उससे और पहले की घटना है। मैं निकल गई, रास्ते भर मैंने नींद पूरी की। So every person has a different way of working. So I thought that if I have to work, and if I have to work for another 5-6 hours, first of all I need to take a nap. So I took a nap in the car with my camera person and driver driving the car. I took a nap on the back seat. 20 मिनट की आराम से नैप ली, नोएडा से शाहीन बाग तक पहुंची। Then I got a call, have you reached? I said I have reached. So I got a brief कि whatever you are seeing and whatever information you have, you will be live for the whole time. You will be live for the whole time. मतलब आपने एक बार माइक प्लग हो गया और अंदर स्टूडियो से एंकर ने अगर एक बार ये कह दिया कि now over to you मीनाक्षी, so the mic is all mine and it is a live streaming. वहाँ पे आपको हिकअप्स का समय नहीं है फिर।
फिर ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे फिर सोचो अरे मुझे क्या बोलना था, अरे मैंने ये तो पढ़ा नहीं, अरे मैंने ये तो तैयारी की नहीं। तैयारी कब काम आती है? ऐसे मौके पर काम आती है। मैंने गाड़ी से उतरने के साथ साथ फॉर अनदर 1.5 आवर मैं नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली बोलती रही। और ऐसा नहीं है कि मतलब babbling, anchors do not babble. Those who have information, they do not babble. Otherwise, the people do babble. But we are not babbling. We are imparting information. We are giving information. और out of the box सोचना ये हुआ कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं वो बताऊंगी। मैं वो नहीं कहूंगी कि जो मुझे बताया गया। आप समझ रहे हैं? आप अलग कैसे हैं? आपने जो देखा, आपने जो सुना, आपने जो महसूस किया और जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस की, यू आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन लाइव एट दैट मोमेंट। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट 100% एट दैट मोमेंट। आपको उस वक्त वहीं पर अपना पूरा फोकस देना है, क्योंकि एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज गोइंग अराउंड, यू कैन नॉट मिस दैट। गलियां सूनी हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापारियों का व्यापार ठप है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, आने जाने वाला रास्ता बंद है, एम्बुलेंस कैन नॉट गो, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल में जाने के लिए एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो परेशान है। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ रिपोर्टर। और फिर जब मैं उस धरना स्थल पर पहुंची, देयर वर ओनली 7 women sitting over there, only 7 women sitting over there. इतना बड़ा प्रदर्शन सर, लेकिन केवल 7 महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ये हुआ that I counted that 7 women sitting over there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और 64 दिन से धरना चल रहा है। 7 महिलाएं बैठी हुई हैं। बाकी महिलाएं कहाँ हैं? बाकी पुरुष कहाँ हैं? धरना है ना, जिसकी वजह से आपने एक रोड को पूरा जाम करके रखा है, कहाँ है? आई गॉट टू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने दिन भर के कामकाज में व्यस्त है। सुबह का नाश्ता बन रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, घर का खाना भी बन रहा है। आपने आधे शहर को ठप करके रखा हुआ एक सड़क पर, और आपके घर में खाना भी बन रहा है। आप नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भी छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और आपने रोड को जाम करके रखा। ये कैसे धरना हुआ? तो ये आप तब कर सकते हैं जब आप 100% वहां पर हैं। एंड दैट बिकेम अ वेरी बिग न्यूज सर ऑन दैट डे। इवन प्राइम मिनिस्टर called to my boss and he said that we have seen the reporting, because within 1.5 hour वहाँ अचानक से मॉब जैसी भीड़ आ गई। My cameraman was about to be bitten. मैं उसको अपने कैमरामैन को बचाते हुए वहाँ से निकाल के लाई, और मैंने कोशिश की कि किसी को कोई चोट ना पहुँचे, मेरी टीम को कोई चोट ना पहुँचे। सो 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं ऑफिस से निकलने से पहले ही अपनी थकान में, अपने एग्जर्शन में ये कह देती कि मैं काम नहीं करूँगी, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। कुछ नहीं होता, मैं 2-3 और बुलेटिन करती रहती, मेरी जगह जाके शायद कोई और वहाँ पे रिपोर्टिंग कराता। लेकिन मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ठीक समझा। पहला फैसला ये, और दूसरा ये कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जो देखा, जो सुना, जैसा महसूस किया, वो आगे बताना है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना अपने करियर में करना, उस दिन आप दूसरों से अलग बन पाएंगे और बेहतर बन पाएंगे। फिर मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से इंटरव्यू करने का अवसर मिला। बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन्स को कवर करने का अवसर मिला। एक ही चीज़ है लाइफ में, सीखने की ललक हमेशा बनी रहे। जिस वक्त आपको लगेगा कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खुद से सवाल पूछें कि उतना पैसा नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस हैज़ टू बी मेंशन, मैंने अपने करियर की शुरुआत 6,000 की सैलरी से की थी, 6,000। सो जस्ट बी प्रिपेयर। हो सकता है जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों 10-12 हज़ार इंटर्नशिप में भी कई बार बहुत चैलेंजेस आते हैं, देन यू स्टार्ट योर जॉब। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति बनना है
तो उस वक्त उस मनी को नहीं देखना है, उस वक्त अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सोचना है। क्योंकि अगर एक बार आपने ये सोच लिया ना कि पैसे कमाने के लिए ये काम करना है, जर्नलिज्म में आना है, तो प्लीज अभी रुक जाइए, होल्ड योर थॉट ओवर हियर ओनली। कुछ अलग करने के लिए जर्नलिस्ट बनना है तो ये दुनिया आपके लिए है, और फिर जितना अच्छा करेंगे पैसों की बरसात भी हो सकती है। ठीक सर, if I'm not wrong and if I'm not taking much of your time, आप में से अगर किसी को एक दो सवाल पूछने हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई क्वेरी हो अगर आप लोग पूछना चाहें, मैम, if they want to ask anything. My name is Ritika. मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब आपने करियर की स्टार्टिंग की थी तो आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए थे एज अ स्टूडेंट? बीइंग अ स्टूडेंट, देखिए मैं हमेशा से, मैंने कहा ना, मंच मेरे लिए पूजा का स्थान है और माइक मेरी अगरबत्ती है। तो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो पहली बात यह है कि मुझे कई लोगों ने ये कहा था कि बिकॉज यू हैव अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ फेस, you look very baby kind of, so you won't be able to do the political reporting. तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी इसका जवाब देने के लिए, पर मैंने अपने मन में ये संकल्प जरूर किया था, आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है। It doesn't matter how you look. सचिन तेंदुलकर की हाइट देखिए, but he is the god of cricket, right? यस मैम। तो पहला चैलेंज ये होता है कि बहुत बहुत आसान होता है ना किसी के चेहरे से, किसी की आपकी आइडेंटिटी जो आपने अभी तक परखी ही नहीं है, अंदर से वो व्यक्ति कितना उसके अंदर कितनी काबिलियत है अभी तक आपने परखा ही नहीं। आपने चेहरे से ये तय कर लिया कि दैट पर्सन इज नॉट सुइटेबल फॉर द पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, बट आई प्रूव देम रॉन्ग। अब तो पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, मुझे खुद ही नहीं पता, बट आई एम हियर। एक्चुअली मैम, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी फैमिली में भी कहा था, देन मेरे पेरेंट्स एंड मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि तू ना बहुत कोमल सी है, तेरे बस की चीज़ नहीं है, तू नहीं कर सकती ये चीज़, इसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए इंसान को, और तू तो मुरझा जाती है छोटी सी बात पे, फील्ड पे जाके डर जाएगी। डरना नहीं है, बेखौफ रहना है, बेखौफ रहना ही शर्त है जर्नलिस्ट की। शाहीन बाग में मैं डर जाती तो क्या मैं काम कर पाती? तो किस बात से डरना? डरना सिर्फ अपने माँ बाप से है और ऊपर वाले से है, बाकी दुनिया में कोई इतना बड़ा नहीं है जिससे आप डरे। थैंक यू मैम। अनदर क्वेश्चन? अच्छा, आगे आगे। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, व्हाट आर द क्वालिटीज वी शुड लाइक अभी से चालू कर देनी चाहिए, जिस पे काम करना चाहिए फॉर एंकरिंग और रिपोर्टिंग? अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनल के टिकर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल के जब आप नीचे टिकर पढ़ते हैं तो उससे आपकी एक तो लैंग्वेज इम्प्रूव होती है और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि देखिए इंटरव्यूज वगैरह ये सब बहुत बाद की बातें आती हैं, सबसे पहले आपको एक अच्छा न्यूज़ रीडर बनना पड़ता है एंड देन इट कम्स टू एंकरिंग। So there are two basic difference between newsreader and anchoring. Is newsreader is the one who is just reading what is written on the teleprompter. तो वो काम तो आपको 100% आना ही अच्छे से चाहिए, एंड देन यू कैन बिकम एन एंकर जब आप अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक खबर को बता सकते हैं। सो अच्छा न्यूज़ रीडर पहले बनिए, फिर अच्छा एंकर आप बन सकते हैं। तो पहला काम यही शुरू करिए, नीचे के टिकर पढ़ना शुरू करिए, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ऑब्जर्व करिए, लैंग्वेज किस तरीके की है, लिखना सीखिए, क्योंकि अच्छा एंकर वही बन सकता है जो अच्छा लिखना जानता है, वरना फिर वो टीपी रीडर बन के रह जाता है। टीपी इज टेलीप्रॉम्प्टर, ऑल ऑफ यू नो, सो दैट्स द आंसर। थैंक यू। Hello ma'am, good afternoon. My name is Ishan Bisaria and I want to ask you that अपनी pronunciation skills या communication skills को हम कैसे सुधार सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए शीशे में देखकर बात करिए, ठीक है? टॉक टू योरसेल्फ। आप मिरर में देखकर बात करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, उससे आपको आपके एक्सप्रेशंस के बारे में पता चलता है। देन यू गेट टू नो दैट व्हेन यू आर टॉकिंग हाउ यू आर लुकिंग,
राइट? तो आप मिरर को देख के बात करिए। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आप रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में खूब सारा पढ़िए पहले, फिर एक स्क्रिप्ट तैयार करिए। उस स्क्रिप्ट को आप शीशे के सामने बार बार बोलिए। उससे आपकी एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप अपने एक्सप्रेशंस देख पाएंगे, कहाँ पे कमियां हैं, फिर उसको ठीक कर पाएंगे। और एक तो मिरर टॉकिंग है, और दूसरा आप प्रोनाउंसिएशन की जब बात करते हैं तब आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करिए। समझ गए? आजकल तो सब लोगों के पास फ़ोन है। हम लोगों ने जब प्रिपेयर किया था तब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, तो हम कई बार जो है कैसेट में रिकॉर्ड करते थे अपनी आवाज़, और फिर सुनते थे कि कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करते जाएंगे। कॉन्फिडेंस के लिए मिरर टॉकिंग, प्रोनाउंसिएशन के लिए रिकॉर्ड वॉट एवर यू आर सेइंग एंड देन उसको सुने। खुद जब आपको अपनी कमियां पता चल जाती है ना, तो दुनिया फिर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हेलो मैम, माय नेम इज़ अमन। हम सबको पता है कि आप एक फियरलेस जर्नलिस्ट हो, बट लाइफ में ऐसा तो एक भी टाइम आया होगा कि जब आपको डर लगा होगा, कोई भी रिपोर्टिंग में कभी भी? शाहीन बाग के दौरान ही मुझे अपने लिए नहीं, अपने कैमरा पर्सन के लिए डर लगा था। एक्चुअली जब शाहीन बाग में मैं रिपोर्टिंग कर रही थी और वहाँ पे भीड़ बहुत कम थी, और ये मैंने नेशनल मीडिया पे दिखा दिया था, तो वहाँ पर लोग बहुत परेशान हो गए थे, डर गए थे। और फिर वहाँ पर एक हूटर बजने लगा, बहुत ज़ोर से हूटर बजा था, बहुत ज़ोर से सायरन बजा था। तो मुझे कुछ सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि ये क्या हो गया, कि कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ होने वाला है। तब मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि दैट वाज द ओनली थिंग। हाँ, मेरे घर वालों को मेरे लिए कब बहुत डर लगा था, जब मैं अभी रिसेंटली पहलगाम गई थी आतंकी हमले के बाद उसे कवर करने के लिए। तो उसमें से जो एक आतंकी था, मैं उसके घर पहुंच गई थी कवरेज के लिए। सो माई फैमिली वॉज रियली स्केयर्ड कि तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, आतंकी के घर पहुंच गई कवरेज के लिए। सो दैट वॉज माई मोमेंट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज and having experience. So I wasn't afraid, but yes, my family was very afraid. और आप लोगों की लाइफ में भी अगर कभी ऐसे मौके आए, तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा हमारे परिवार वाले घबराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अपने उनसे दूर हो जाएं। So I wasn't scared. पहलगाम आतंकी हमले में ही एक जगह जॉइंट एनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें सीआरपीएफ, जेके पुलिस के जवान एक साथ वहाँ पर काम कर रहे थे। वो भी एक टेररिस्ट विलेज ही था। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ माय कार एंड वेंट इनसाइड विद माय कैमरा पर्सन एंड माय गन माइक इन माय हैंड, और कई बार हमें क्योंकि ऐसे रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर हमें वहाँ जवान समझाते हैं। सो इमीडिएटली एक जवान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैम आप इस तरीके से यहाँ खड़े मत होइए, वी कैनॉट अश्योर योर सेफ्टी, क्योंकि कभी भी यहाँ कहीं से भी गोली चल सकती है। तो ऑब्वियसली टेररिस्ट गोली ही होगी, सिविलियन गोली तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, आप अपनी कार में जाकर बैठ जाइए, जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है, यू कैनॉट मूव अहेड। So the encounter was going on, so I couldn't move ahead. So I was sitting in the car and I made a report from there in my car only, and then sent to my office, and then we played that report also. So these are the moments which gave me another experience. But if you'll ask me if I was scared, no, I wasn't. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience and making this orientation series so interesting. Before we conclude, we are proud to present DME newsletter. I would request Meenakshi ma'am to please unveil the newsletter of DME. Our students have worked really hard, and the faculty member as well. Give a huge round of applause for the DME newsletter. And now I would like to invite Mr. Vishal Sahai to deliver the vote of thanks and formally express our gratitude to our esteemed guests and dignitaries.
नमस्कार। परम श्रद्धेय डीजी सर, आज की मुख्य अतिथि मीनाक्षी मैम, डॉक्टर कोमल, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं मीनाक्षी मैम को काफ़ी सालों से जानता हूँ। मैंने इनकी फ़ोटो एक शख्स को भेजी है अभी, उनका मैसेज आया वो कब तक घर आ रही हैं। मैंने कहा बस होने वाला है ख़त्म प्रोग्राम, बिकॉज इनके हस्बैंड और मैं दोनों क्लासमेट रहे हैं और तुम इनको मैं हक से बुला लेता हूँ कि आप हक से आ जाओ। एक बार उन्होंने हक से मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि द रीज़न इज़ दिस, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आज टाइम दिया। और आई नो सैटरडे रहता है और एक ही छुट्टी मिलती है 3 दिनों के बाद, आपको और बच्चों को भी देखना होता है, बट जिस तरीके से मैम ने बातें रखी आज यहाँ पर, ये आप सबके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग उनको जानते हैं योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई योगा, रिपोर्टिंग इन योगा, बाबा रामदेव योगा, पर इनके कुछ और भी फैक्ट्स हैं। जैसे एक ने यहाँ पे अमन ने जो बात की कि आपको डर लगता है कि नहीं लगता। अगर डर लगता होता तो 2020 में नोएडा पुलिस इनको डीसीपी नहीं बनाती विमेंस डे पे। नोएडा पुलिस में वो एक दिन की विमेंस डे पे डीसीपी बनी थी। और जिस तरीके से वो कैमरामैन थे फरमान मलिक, वो मेरा स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके सर पे चोट लगी तो मैंने फ़ोन भी किया था उनको, भैया क्या हो गया तुमको। तो ये रहता है हम लोग की फील्ड के अंदर कि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं। विच मैम ने 4 पॉइंट्स की बात बोली, जैसे मार्केटिंग में 4 P's ऑफ मार्केटिंग होता है, वैसे ही आपके लिए मैम ने 4 सूत्री कार्यक्रम बताया है जो आपको फॉलो करना है, नॉट आपको एज ए टीचर्स, हम सबको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डायरेक्टर सर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा, डीजी सर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा हमें मिलती रही हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है। और आप लोग को मैं तहे दिल से बताना चाहता हूँ कि सर के पास इतना भंडार है ज्ञान का कि अगर आप बैठेंगे तो बोर नहीं होंगे। आप बताइए, चाय पे चर्चा हो रही थी, वो चर्चा इतनी लंबी चली गई सर के एक ही इंसिडेंट से, और ऐसे कई केसेस हैं जो सर के द्वारा रहे और बहुत अच्छा लगता है। आशा करता हूं कि आपको फिर से मौका मिलेगा सर से बात करने का, और जहां पे आप लंबे समय से सर से बात कर पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे और प्रश्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से डीएमई फैमिली की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और अपना समय दिया। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूं, जो बात मीनाक्षी मैम ने शुरुआत में कही थी, जो भोजन मंत्र हमारे लिए होता है, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, वहाँ पे भोजन जो है वो नंगे पैर हाथ धो के भोजन मंत्र करना के बाद ही खाते थे, उसके बाद शांति पाठ होता था, फिर आप क्लासेस में जाते थे। तो जब वो सुना मैंने तो मैं एकदम से वो हो गया कि भाई, तो आज की जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, येषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। कितने लोगों ने सुना था ये? द रीजन इज दिस, जिसके पास यश नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो इस जगह पे है तो पर एक जानवर की भांति। तो ज्ञान और तप बहुत जरूरी है, जो मीनाक्षी मैम ने जो बात की शुरुआत करी, इस बातों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमारे साथ जो नए साथी जुड़े हैं वो भी इसी एंथुसियाज्म के साथ, इसी के चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, और एक दिन ज़रूर आएगा कि आप यहाँ पे खड़े होंगे और डीएमई फैमिली एक प्राउड फील कर रही होगी अपने इस एलुमनाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much to all the students and to all the dignitaries for joining us today. With this, we conclude our session. Thank you so much. Have a good day.